Okay, let me begin. Am I audible? Am I audible to you? Okay. So this was one of the examples I had shown you earlier, but it was not completed. So in fact, it is regarding the time cost trade-off calculation, and it is related to CPM, not POT. So what exactly happens in this case? As you know, there are two different times and costs associated with various activities. One is normal time, normal cost, crash time, crash cost. We have seen that there is something called cost slope, and based on the cost slope, you can prefer some activity for crashing. The activity with the lowest cost slope should be preferred because that is economically beneficial, because at a lower cost difference you are getting a reduction in the time. So that is a concept of crashing. Now, these things you already know, that is direct and indirect cost, and so the total cost will be minimum at some point. So we have to find that duration which gives us the minimum total cost. So it is not advisable to crash the project fully, nor to complete it in a normal time. So in either case, the cost will be more. So there is something in between these two extremes, which so this numerical is actually based on this. So you can see there are activities A to F, and some precedence relationship is given so that you can construct the network diagram. Then for each activity, you have all the four things are given, right? Normal duration, normal cost, normal crash duration, and crash cost. And if you will read this statement also, it is mentioned assume daily indirect cost of 100 currency notes. So indirect cost is that cost which is simply proportional to the number of days. So more the number of days, more will be the number of indirect cost. So this is that straight line, that 100 currency, which is that slope of that straight line, which is the indirect cost line. So now we have to see that what is the normal duration in which it will be completed, and what is the normal cost. So if we'll not going for any crashing, okay, let me show you the first scenario. Okay, so this is the first scenario without any crashing. As you can see, the approach or method for construction of this network is activity on node, right? So in the nodes, these blocks are activities actually. So for each activity, all the four times are mentioned. Like the top two are early start, early finish, and bottom two are late start, late finish. So the first top two figures are filled up during the forward pass computation, and the bottom two are completed in the backward pass computation, right? So in whichever method you use, the calculation will be the same. But in AON, you are using four different time estimates, and in AOA, only two can do it. Now below that activity block, you can see some data is given like 20 at the rate 100. So first number is the crashability. Crashability means for what that time it can be crashed. So you can see in that table, the difference between the normal duration and crash duration is 20. So that's why maximum 20 days can be crashed. And next figure at the rate के बाद जो लिखा है वो है उसका slope, cost slope. Cost slope is your crash cost minus normal cost by normal duration minus crash duration. So that is the slope of that line. तो जैसे मैंने बताया था, जो भी एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप कम है, ठीक है, जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं सबसे मिनिमम किस एक्टिविटी का है, डी का है, ठीक है. तो डी का आप देख सकते हैं, इट इज ओनली 60, राइट. तो इसका कॉस्ट स्लोप बहुत कम है. सो इट इज प्रिफर्ड दैट यू शुड क्रैश इट, है ना. बट बिफोर दैट यू हैव टू सी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रैशिंग द एक्टिविटी. ये जो फिगर अभी हम आपको दिखा रहे हैं,
it is for normal cost and normal duration. There is no crashing as taken place. So after doing all the forward and backward computation, we found that the project is going to complete in 140 days in normal way, right? That is the normal duration. अगर कोई क्रैशिंग नहीं करते तो आपका प्रोजेक्ट 140 डेज में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. एंड एट द सेम टाइम यू आल्सो आइडेंटिफाइड द क्रिटिकल पाथ, जो बोल्ड लाइन आप देख सकते हैं. सो दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द एक्टिविटीज. फर्स्ट ब्लॉक तो सिंपली स्टार्ट है, बाय डिफॉल्ट रहता है, लेकिन आपका जो एक्टिविटीज है, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है, वो अभी आप देख सकते हैं. दैट इज बी, सी, डी एंड ई, ठीक है. और लास्ट वाला भी एक्टिविटी नहीं है, दैट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द एंड नोड. तो बी, सी, डी, ई आर द 4 critical activities that you have identified in the fast stage. Let us call this the fast stage without any pressure. तो आप ये कह सकते हो, अगर इस प्रोजेक्ट को आप नॉर्मल ड्यूरेशन में कंप्लीट करते हो, तो व्हाट विल द कॉस्ट यू विल इनकर? You will incur the sum of all the normal costs of all these activities. Listen to me carefully. अगर इस प्रोजेक्ट को आप नॉर्मली कंप्लीट करते हो, राइट, यू आर नॉट इन ए हरी, तो आपका कितना एक्सपेंडिचर आएगा? आपका एक्सपेंडिचर आएगा इसमें जितने भी एक्टिविटीज, इवन ए भी, जबकि ए क्रिटिकल पाथ में नहीं है, बट यू हैव टू कंप्लीट ए टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करके कहेंगे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, ऐसा तो नहीं है. यू हैव टू कंप्लीट ए, यू हैव टू कंप्लीट एफ आल्सो. तो इस स्टेज में, जो स्टेज में अभी आपको दिखा रहा हूँ, what is the total cost for this project? So you have to add, you have to sum up all the normal costs, कुछ टेबल में है जो normal cost है, all the normal costs of the activities A, B, C, D, E, F, सारे activities का जो normal cost है वो ऐड करना होगा. जो भी हुआ उसमें आपको indirect cost ऐड करना होगा. What is indirect cost? जो आपको दिया है ना, 100 units per day, ठीक है. तो whether something is happening or not, that cost you have to bear. जो आपके ओवरहेड टाइप के कॉस्ट है, जैसे कोई रेंट है, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो आपको देना ही पड़ेगा. इट इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू द डेज और टाइम. तो आपको 140 डेज में आप कंप्लीट कर रहे हो, तो 140 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया आपका टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट. प्लस डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जो मैंने बताया कि आप सारे एक्टिविटीज का नॉर्मल कॉस्ट को ऐड कर दीजिए, दैट इज द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट. तो ये दोनों को जब ऐड कर देंगे, सो दैट विल गिव यू द टोटल नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट. वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, द प्रोजेक्ट टोटल नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट इज सम ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज, जो कि आपका 48,300 यूनिट्स आ रहा है. ये कुछ करेक्ट करेंसी यूनिट है, आप उसको इग्नोर कीजिए, कोई और कंट्री का है तो वहाँ पे INR हो सकता है, डॉलर हो सकता है. तो दिस इज द टोटल नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट. जब आप सारे एक्टिविटी के नॉर्मल कॉस्ट को ऐड करते हैं, और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए आपको उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड करना होगा, दैट इज 140 मल्टीप्लाइड बाय 100. इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड. Okay, even if you have some doubt, you can ask me, और आप उसको नोट करके रख सकते हो, जब भी बाद में मिलेंगे ठीक है. So this is the first stage. Now हमारा जॉब यहाँ भी खत्म नहीं हुआ. See, we want to find कि what is the optimum level of crashing, क्योंकि हम पता है हमको इस सब एक्टिविटी में क्रैशिंग का चांस है, they are crashable. तो अगर हम इसको क्रैश करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा. फिर हम ये भी देख सकते हैं कि नॉर्मल जो अभी कॉस्ट आया है टोटल, उससे भी कम कॉस्ट में हो सकता है, ठीक है. सो डेफिनेटली इट इज प्रिफरेबल, क्योंकि आप टाइम भी कम कर सकते हो, प्लस टोटल कॉस्ट को भी कम कर सकते हो. जो स्कोर के सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे अराइव रीच कर सकते हो. दैट्स व्हाई नाउ विल प्रोसीड. यहाँ पे थोड़ा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है. इसी फिगर का आप एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक. ऑब्वियसली एक नेचुरल चीज है कि आप जब क्रैशिंग के लिए आप सोच रहे हो नेक्स्ट स्टेज में, तो ऑब्वियसली आप ऐसे एक्टिविटीज को सिलेक्ट करोगे जिसको क्रैश करने से आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम होगा,
इट इज वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं कि आप एक्टिविटी ए को क्रॉस करोगे, क्योंकि एक्टिविटी ए को क्रॉस करने से वो 140 ही रहेगा, क्योंकि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो अब क्रिटिकल पाथ में जो जो एक्टिविटी है उनमें से किसी को चुनोगे, सिलेक्ट करोगे, जिसको क्रॉस करने से आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ही कम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिसिस लगेगा। और ये चीज भी हम बता सकते हैं, ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं कोई इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, कोई फिक्स नहीं है कि सबका एनालिसिस या सिलेक्शन सेम रहे। ये भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें अल्टरनेटिव भी कुछ और हो सकता है, कोई और इसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कभी कभी अल्टरनेट ऑप्शन भी रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको सब डिस्क्रीट पॉइंट्स मिलेगा और स्टेजेस जिसको कह सकते हैं, वो लगभग मैच हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमको जैसे मैंने कहा, वी हैव टू सिलेक्ट सम एक्टिविटी आउट ऑफ दिस क्रिटिकल एक्टिविटीज, दैट इज बी सी डी ई, और जिसको हम क्रॉस करके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कम करेंगे। ठीक है, दिस वन थिंग। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अब हमको बी सी डी ई में से किसको क्रॉस करना है ये देखना होगा। ठीक, तो इसमें जब हम देखेंगे तो सबसे पहला जो आपको क्राइटेरिया वो है, जैसे मैंने बताया था आपको कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉस्ट स्लोप। ऑब्वियसली हम वैसे एक्टिविटी को क्रॉस करेंगे जिसके लिए हमको कम एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि उसका कॉस्ट स्लोप कम है। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, आउट ऑफ दिस BCDE द एक्टिविटी डी जो है इसका कॉस्ट स्लोप सबसे कम है, ओनली 60 कंपेयर टू जैसे सी आप देख सकते हो दैट इज 600, दैट इज 10 टाइम्स। तो आप ये गलती तो नहीं करोगे कि आप पहले सी को क्रॉस करोगे, क्योंकि उसमें आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। सो ऑब्वियसली विल सिलेक्ट एक्टिविटी डी, क्योंकि उसका कॉस्ट स्लोप सबसे कम है। नेक्स्ट है कि कितने डेज क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आपके क्रॉसएबिलिटी एक्टिविटी डी का कितना है, 10 डेज है मैक्सिमम, इट कैन बी क्रॉस्ड अप टू 10 डेज। ये आपको उस टेबल से आप मिला है, आप यहाँ पे लिखे हो, तो 10 डेज तक आप क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पे आप मान लो आपको लगता है कि 10 डेज नहीं करना है, उससे कुछ कम करना है, वो भी सोच सकते हो, लेकिन कोई उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो टोटल 10 डेज है उस 10 डेज को भी आप क्रॉस कर सकते हो, लेकिन कोई अगर और डिस्क्रीट उसको और फाइन ट्यून करके क्रॉस करना चाहता है तो एक एक दिन भी क्रॉस कर सकता है। सो ही विल नीड 10 सच इटरेशंस। तो है तो मतलब इट विल बी फुलिश काइंड ऑफ थिंग, बट समटाइम्स मे बी इट इज रिक्वायर्ड कि नॉट क्रॉस इट अप टू 10 डेज, मे बी 5-6 डेज और समथिंग लाइक दैट। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई कैन नॉट गिव यू any strict formula that okay you have to select this one. तो इस केस में आपको जब ऑप्टिमम वैल्यू निकालना है, और मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन में भी है कहीं पे, यस आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक लाइन में लिखा है, इट इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ड्यूरेशन हो गया 140 डेज टू ए फाइनल ड्यूरेशन ऑफ 110 डेज, मतलब 110 तक आपको कम करना है। तो यहाँ पे एक एक दिन कम करके आप खेलते रहोगे, कुछ जरूरत नहीं। ठीक है, सो यू कैन क्रॉस द एक्टिविटी डी बाय स्ट्रेट 10 डेज, क्योंकि हमको यह 140 को 110 तक लाना है। तो जैसे इसको आप देखो 10 डेज क्रॉस कर दोगे तो डी का एक्टिविटी टाइम जो उस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है 30, वो हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो इसको 20 लेके फिर से रिकैलकुलेट करोगे। मैं नेक्स्ट फिगर में जा रहा हूँ, दिस इज समथिंग लाइक द सेकंड स्टेज। ठीक है, इस फिगर में आप अब देखिए डी का ब्लॉक के अंदर हम D20 चेंज हो गया है, क्योंकि 10 डेज पूरा क्रॉस कर दिए, और उससे नीचे जो फिगर था पूरा गायब हो गया, क्योंकि और क्रॉसेबल नहीं है। लेकिन ये चेंज होने के बाद आप फिर से रिकैलकुलेट करोगे फॉरवर्ड कंप्यूटेशन एज वेल एज बैकवर्ड कंप्यूटेशन, और आप देखोगे कुछ चेंजेस आया क्या। यस, देयर इज अ बिग चेंज। नाउ दिस एक्टिविटी एफ इज ऑल्सो बिकमिंग पार्ट ऑफ क्रिटिकल। ये चेंजेस आ सकता है जब भी आप ड्यूरेशन चेंज करते हो, तो आपके नए नए क्रिटिकल पाथ डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 बोल्ड लाइन हो चुका है, एक एफ भी क्रिटिकल पाथ है, जबकि ए अभी तक नॉन क्रिटिकल बना हुआ है। तो आपके अभी 2 क्रिटिकल पाथ क्या क्या हो गया, BCDE एंड BFE। ठीक है, तो ये सबको ऐड करो, आप देखोगे 130 होगा, और आपका लास्ट जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 130 हो चुका है। ठीक है, आप 10 दिन कम कर चुके हैं। अच्छा, इस स्टेज का भी अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहोगे,
हर एक स्टेज का जो डिस्क्रीट पॉइंट है आपके लिए ग्राफ में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पॉइंट का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट भी आप साथ में कैलकुलेट करते जाइए। तो ये जब एक स्टेज आ गया, इसका टोटल कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे, उसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे पहले जो कॉस्ट था, ठीक है, पहले जो कॉस्ट था उस कॉस्ट को बेस बना के, जैसे आपका 483,000 था टोटल का, जो नॉर्मल कॉस्ट था, ठीक है, उसमें आप ये जो क्रैश किए, जो डी को 10 दिन जो क्रैश किए, उसके जो भी कॉस्ट कंपोनेंट है उसको ऐड कर दीजिए। तो आप देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 10 into 60, क्योंकि उसका 60 था स्लोप। स्लोप इज नथिंग बट कॉस्ट पर डे, है कि नहीं? तो उस 60 को अब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 10 दिन आप उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किए, सो 600 हो गया। सो दैट 600 यू कैन ऐड विद द नॉर्मल कॉस्ट, वो टोटल आपको वही दे देगा जो इस स्टेज का टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, 48900। दिस इज द न्यू टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट है। सिमिलरली आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी निकालना है, लेकिन अब इनडायरेक्ट कॉस्ट आप देखिए कम होता जा रहा है, क्योंकि आपका टोटल ड्यूरेशन 140 के बजाय 130 हो चुका है। So what is the total indirect cost? It is 130 multiplied by 100, क्योंकि वो पर डे 100 था। फिर ये दोनों का ऐड करके एक फिगर रखिए, तो इसको एक टेबल बना के, इसको हर एक डिस्क्रीट पॉइंट जिसको हम स्टेज कह रहे हैं, इसको एक एक पॉइंट का टोटल कॉस्ट रख सकते हैं, तो क्या कि बाद में प्लॉटिंग करने में आपका आसान है, ठीक है। So now this is the second stage and we found the total cost for this second stage and we found that there are now two critical paths. तो और फर्दर हमको अगर कम करना है प्रोजेक्ट को, मैक्सिमम जहाँ तक कम कर सकते हैं वहाँ तक चेक करना चाहेंगे, ठीक है। देन you can say that we have completely analyzed and we found all the possible points. ऐसा नहीं कि कहीं पे हम छोड़ देंगे, और फर्दर क्रैशिंग पॉसिबल है तो यू कैन चेक इट, बट जुडिशियसली मीन्स हम ब्लाइंडली किसी को क्रैश नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा एक्टिविटी को क्रैश करेंगे जिसका कॉस्ट फ्लो कम है, एट द सेम टाइम वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को डायरेक्टली कम करता हो, ठीक है। जैसे इस केस में हम ए को तो बिल्कुल क्रैश नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉन क्रिटिकल है ना। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज हम देख रहे हैं कि ये जो अभी 5 क्रिटिकल एक्टिविटी बन गया, तो इसमें से हम किसको जो है क्रॉस करेंगे, जो कि क्रिटिकल टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को कम कर देगा, ठीक है, ऐसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए बी ऐसा एक एक्टिविटी है जो दोनों क्रिटिकल पाथ को कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, लेकिन उसका कॉस्ट स्लोप 200 है, 200। सिमिलरली ई ऐसा क्रिटिकल एक्टिविटी है जो भी दोनों क्रिटिकल पाथ को कॉमन है, मतलब सिर्फ ई को क्रॉस करके हम टोटल ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, जबकि अगर हम सी डी को क्रॉस करेंगे तो भी क्रिटिकल टाइम कम नहीं होगा, क्योंकि जो बी एफ ई वो क्रिटिकल मेंटेन रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको ऐसे एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है जो सारे क्रिटिकल पाथ में कॉमन हो, जैसे इस केस में है। अगर नहीं होता तो हमको सारे क्रिटिकल पाथ्स में से कोई कोई एक्टिविटी को इक्वल अमाउंट कम करना पड़ेगा, तभी टोटल ड्यूरेशन कम होगा। अगर मल्टीपल क्रिटिकल पाथ है तो उसमें से कोई एक पाथ का एक्टिविटी को कम कर देने से आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम नहीं होगा, क्योंकि देयर इज अनदर पाथ व्हिच इज द लॉन्गेस्ट वन। तो आपको साइमल्टेनियसली सारे क्रिटिकल पाथ का एक्टिविटी को इक्वल अमाउंट कम करने से उतना अमाउंट कम हो जाएगी आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। लेकिन यहाँ पे अभी वो सिचुएशन नहीं आया है, बिकॉज वी हैव टू एक्टिविटीज लाइक बी एंड ई विच आर कॉमन। अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि बी को 5 डेज क्रॉस कर सकते हैं जिसका कि स्लोप 200 है, ई को 10 डेज क्रॉस कर सकते हैं जिसका कि स्लोप 120 है, जो कि कम है बी से। तो लॉजिकल ये बनता है कि नेक्स्ट स्टेज में हम चलो ई को क्रॉस कर देते हैं बाय 10 डेज, ठीक है। ई को अगर 10 डेज क्रॉस कर देंगे तो उसका क्रॉसिंग पूरा खत्म हो जाएगी, वो फर्दर क्रॉस नहीं हो सकता, और आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 120 को जंप कर जाएगी, पूरा एग्जैक्टली कम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेज होपफुली, यस। सो दैट दिस इज द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या किया गया है कि आपका एक्टिविटी ई देखिए, एक्टिविटी ई के नीचे और कुछ नहीं लिखा गया है, मतलब इट इज कम्प्लीटली क्रैश नाउ, और ई का ड्यूरेशन को 40 कर दिया गया है इंस्टेड ऑफ 50, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं?
Can you see the slides? Okay. तो इस स्टेज में क्या हुआ है, ई का टाइम 40 हो गया क्योंकि पूरा 10 डेज उसका फुली क्रैश हो गया। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देखिए आप, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 120 आ चुका है फ्रॉम 30 से, ठीक है। सो दिस लेट अस से थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में फिर हमको टोटल कॉस्ट भी चाहिए प्लॉटिंग के लिए। तो टोटल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस स्टेज में जो अमाउंट था उसमें हम 10 इंटू 120 ऐड कर देंगे, जो कि ई के क्रैशिंग का एक्स्ट्रा कॉस्ट है। सो 120 मल्टीप्लाइड बाई 10 because 10 days क्रैशिंग हुआ है, और 1200 हम प्रीवियस फिगर में ऐड कर देंगे। नीचे देखिए कैलकुलेशन थोड़ा दिखाया गया है। सो न्यू प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट हो गया आपका 50100। फिर आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है जो मेंशन नहीं है, लेकिन आप साथ ही साथ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट अभी कितना होगा एनीवन? यस, करेक्ट। तो अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया आपका, टोटल प्रोजेक्ट हमने 120 और उसको सिंपली वो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो वो फिगर, उसको ये 50100 में ऐड कर दो, दैट विल गिव यू द टोटल कॉस्ट इफ आर अडॉप्टिंग दिस मॉडल, राइट? दैट विल बी द टोटल कॉस्ट। जो भी हो फिगर उसको हम अलग से रखेंगे। नाउ देयर इज अनदर डेवलपमेंट यू कैन सी इन दिस फिगर। आप जब इसको ई को 40 करके फिर से रिकैलकुलेट किए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास, you found that now this activity A is also become a part of critical activity। मतलब अभी आप देख सकते हो सारे एक्टिविटी जो है क्रिटिकल है, सारे एक्टिविटी क्रिटिकल है। So there are 3 paths basically, one is through A, one is through BCDE, one is through BFE। there are 3 critical paths now, right? अभी अगर हमको प्रोजेक्ट को और कम करना है, जैसे पूछा गया है कि 110 तक कम कीजिए, अभी अगर कम करना है तो कोई एक एक्टिविटी से हम मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर ए को हम 10 क्रैश कर दिए, ठीक है, तो बाकी दोनों पाथ तो ये 120 ही देगा, तो प्रोजेक्ट ओवरऑल ड्यूरेशन कम नहीं हो पाएगा। तो क्या कर सकते हैं, कोई कुछ सोच के बता सकते हैं? ओके, इसमें अभी हम क्या कर सकते हैं कि अभी तक एक्टिविटी बी जो है ये 2 क्रिटिकल पाथ का कम से कम कॉमन है। ई तो फुली कंज्यूम हो चुका है, बी अभी तक 2 क्रिटिकल पाथ का कॉमन है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 5 डेज क्रैश हो सकता है, ठीक है? तो क्यों ना हम बी को 5 डेज क्रैश करें और ए को भी 5 इक्वली क्रैश करें। 20 करके कोई फायदा नहीं है, 5 डेज ही क्रैश करें। ए को 5 डेज, बी को 5 डेज साइमल्टेनियसली। जब ये हम करेंगे हम देखेंगे कि ये 120 जो है दैट विल बिकम 115 एटलीस्ट, ठीक है? ये एक स्टेज आ जाएगी। वो 15 होने के बाद फिर हमको 5 कम करना होगा थ्रू आउट ऑल द 3 क्रिटिकल पाथ्स। ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा यू हैव टू डू सम एनालिसिस कि कैसे आप काम कर सकते हो। हो सकता है कुछ अल्टरनेटिव हो, बिकॉज डिपेंड्स। But in this case, what I can see, the next stage will reduce, will fully crash the B by 5 days, and will crash A by 5 days only. No news of crashing it by 20 days. So unnecessary expenditure. Okay. So I'm going to the next stage. Yes. Now look at this figure. अभी आप देख सकते हैं B के नीचे और कुछ नहीं लिखा गया क्योंकि it is fully crashed, और A के नीचे 15 आ गया, ठीक है? A के नीचे 15 आ गया और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 115 हो चुका है, बट स्टिल देयर आर 3 क्रिटिकल पाथ्स, क्योंकि आप और कोई चेंज तो नहीं किए हो तो क्रिटिकल ही रहेगा, ठीक है? अब देखिए इसमें न्यू कॉस्ट कैलकुलेशन भी आपको करना होगा। तो प्रीवियस स्टेज में जो कॉस्ट था इसमें अब 2 एक्टिविटी के जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका एडिशन करना होगा। यू हैव क्रैश्ड बाय 5 डेज, तो यहाँ कैलकुलेशन देखिए, द प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5 into 100 plus 200, क्योंकि 2 एक्टिविटी था ना, एक बी का और एक ए का। ए का था 100 कॉस्ट लो और बी का था 200 कॉस्ट लो, तो जस्ट दोनों को ऐड करके 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, 1500 हो गया। इस 1500 को हम प्रीवियस फिगर में ऐड कर दिए। सो द न्यू टोटल डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दिस केस इज
51600। अब देख सकते हो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होते जा रहा है जब आप इसको ड्यूरेशन कम करके क्रैशिंग करते जा रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट इज रिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ क्रैशिंग, लेकिन आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होते जा रहा है। ठीक है, आप प्रोजेक्ट जल्दी खत्म कर रहे हो, आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट कम हो रहा है। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट इज 115 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो और कम हो गया। तो इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करके टोटल कर देंगे। ना लुक एट दिस फिगर, इसको हमको और क्रैश करना है, मान लो 110 तक लेना है। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कर सकते हैं एनीवन? इसको 110 कैसे करना है टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, सोच के बताइए। यस, 110 प्रोजेक्ट कंप्लीशन करना है ना, सो हाउ यू कैन डू इट? किस एक्टिविटी को क्रैश करेंगे, कितना डेज के लिए क्रैश करेंगे? हेलो, आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? ठीक है, सोच के बताओ। ओके, मैं बता देता हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है इसके लिए। तो सी, अभी हमको 115 को 110 करना है बिकॉज वी आर आस्क्ड टू डू दैट। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? क्रिटिकल पाथ, एक तो ए के थ्रू वो एक क्रिटिकल पाथ है, और दो क्रिटिकल पाथ है बी सी डी ई और बी एफ ई। ठीक है, तो जब मल्टीपल क्रिटिकल पाथ है तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम करने के लिए हमको हर एक मल्टीपल क्रिटिकल पाथ का टाइम कम करना होगा, क्योंकि ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है जो तीनों क्रिटिकल पाथ का कॉमन हो, ऐसा नहीं है। और जो ऐसा एक्टिविटी था जो दो क्रिटिकल पाथ का कॉमन है उसको हम फुली यूटिलाइज कर चुके हैं, लाइक बी एंड ई। इसमें और कोई क्रैशिंग का गुंजाइश नहीं है, दे आर फुली क्रैश्ड। तो फिर भी अगर हमको प्रोजेक्ट कॉस्ट कम, सॉरी ड्यूरेशन कम करना है 5 डेज के लिए, तो आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे। एक्टिविटी ए को 5 डेज क्रैश कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन अभी भी 15 डेज का क्रैशेबिलिटी बचा है, तो उसको 5 डेज के लिए क्रैश कर देंगे। और ये जो क्रिटिकल पाथ है बी सी डी ई, इसमें अगर सी को, क्योंकि इस सी में भी 10 डेज का क्रैशेबिलिटी बचा है, सी को 5 डेज के लिए क्रैश कर देंगे सी को। और दूसरा जो क्रिटिकल पाथ है जिसमें एफ आता है, सिर्फ एफ में ही बचा है, एफ को भी 5 डेज के लिए क्रैश कर देंगे। जैसे मैंने कहा, सेम अमाउंट फ्रॉम ऑल द क्रिटिकल पाथ्स, ए को क्रैश होगा, सी को क्रैश करेंगे, एफ को भी क्रैश करेंगे, इक्वल अमाउंट में 5 डेज में। तो आपका ये 115 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगी। ठीक है, वैसे आप 110 से और भी कम कर सकते हो, देयर इज स्टिल सम चांस, क्योंकि यहाँ पे भी और 5 डेज बचा है आपका सी में। ठीक है, मैक्सिमम इस प्रोजेक्ट को आप कहाँ तक ले सकते हो कम करके, बता सकते हो? 105 डेज तक ले सकते हो, 105 डेज तक, उससे कम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सी में मैक्सिमम क्रैशेबिलिटी 10 है। तो अगर आप 10 तक क्रैश कर देते हो, और ए और एफ में तो 5 डेज फिर भी बचेगा, क्योंकि इट इज 15 डेज क्रैशेबिलिटी है। सो टोटल ड्यूरेशन आपका 105 तक जा सकता है। वैसे आपको पूछा नहीं गया है, 110 तक पूछा गया है, इसलिए हम 110 में रुक जाएंगे। बट द मिनिमम टाइम is 105. We can fully cross activity C. तो ये चीज समझ पाए आप? ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ 5 डेज क्रॉस करेंगे क्योंकि हमको 110 तक लाना है। तो नेक्स्ट स्टेज में ए 5 डेज क्रॉस्ड, सी 5 डेज एंड एफ, तो आपका न्यू टाइम हो जाएगी 150, और एक न्यू कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए लास्ट स्टेज। ठीक है, दिस द लास्ट स्टेज, ये का फाइनल स्टेज, जिसमें आप देख सकते हो एक्टिविटी ए का 10 डेज बचा है, सी का 5 डेज बचा है, एफ का 10 डेज बचा है, और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन 110। आप यही रुक सकते हैं, वैसे और भी 5 डेज कम कर सकते थे जो सी का बचा हुआ है, उससे फर्दर कम नहीं हो सकता। तो इसका कॉस्ट वैसे ही कैलकुलेट करोगे, जो प्रीवियस टोटल कॉस्ट में आपका
जो A का स्लोप प्लस C का कॉस्ट स्लोप प्लस A का कॉस्ट स्लोप ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जैसे ऊपर देख सकते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट बाई 5 इंटू 100 प्लस 600 प्लस 300, ये जो 5000 है इसको ऐड कर देंगे प्रीवियस टोटल डायरेक्ट कॉस्ट में, और 110 डेज जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस स्टेज का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सो मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, लुक एट दिस टेबल कैटेगरी। तो ये जो डिस्क्रीट पॉइंट या स्टेजेस की हम लोग बात किए हैं, इसी का अभी आप देखिए एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है, टेबल दिया गया है। जैसे फर्स्ट फिगर है 140 डेज, तो 140 डेज में डायरेक्ट कॉस्ट क्या था, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है। फिर हम आए 130 में, उस समय का टोटल कॉस्ट, फिर 120 में आए, फिर 115 में आए बीच में, फिर लास्ट को 110 में आए। तो ये जो टोटल कॉस्ट है, जो लास्ट कलम है, ठीक है, अब हम इसको एक्स एंड वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं। ये नीचे वाला फिगर देखिए, एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डेज में और वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक। जब नॉर्मल एग्जाम हुआ करता था तो उस समय इसके लिए ग्राफ पेपर वगैरह भी मिलता था, तो इस बार तो ऐसा नहीं होगा, बट जो समझ जाएगा वो आराम से कर सकते थे समझ में। तो ये जो सैलिएंट पॉइंट्स है, जैसे 5 पॉइंट है आपको मिला है यहाँ पे, जो स्टेजेस हम लिए हैं, उस 5 पॉइंट को यहाँ प्लॉट किया गया है। ये एक्चुअली थोड़ा एकदम स्ट्रेट हो गया है, लेकिन जब इसको एक्चुअली ड्रॉ करेंगे शायद इतना स्ट्रेट नहीं दिखेगा, कैन इजीली फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। और ग्राफ को छोड़िए, आप इस टोटल कॉस्ट को कलम को देखिए, ठीक है, लुक एट द टोटल कॉस्ट कलम। कोई ट्रेंड, आई मीन कोई आउटपुट इसमें से आपको मिल रहा है कि किस पॉइंट में ये मिनिमम दे रहा है? What is the duration in which the total cost is minimum? वन 30 days, ठीक है, वैसे यहाँ लिखा भी है साइड में, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज। अब देखिए कितना बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज आर इन्वॉल्व। ये चीज कितना मायने रखता है कि यू आर कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट बिफोर द नॉर्मल टाइम 140 days है, यू आर कंप्लीटिंग इट बिफोर द नॉर्मल टाइम, बट you are also spending less on it. So this is the biggest objective, or I mean utilization of this critical path method or the time cost trade-off analysis, ठीक है। तो आप देखिए इस टेबल में, या जब प्लॉटिंग करेंगे तो करस्पॉन्डिंग टू 130, ये जो ऊपर वाला ब्लू लाइन वो हो सकता है सबसे मिनिमम पॉइंट में है, वैसे यहाँ से बढ़िया से नहीं दिख रहा है, बट व्हेन यू प्लॉट इट with scale, obviously it will be minimum, क्योंकि टेबल में आप देख सकते हैं कि that corresponding figure is 61,900, right? 61,900 is the total cost of the project when you are completing in 130 days. अगर आप इसको normally complete करते हो, so it is taking 140 days and cost is more than that value also, ठीक है। तो ये 1000 में है तो इसलिए हो सकता है आपको significant नहीं लग रहा हो, but you will multiply that with lakhs, then maybe you will find what is the difference. Similarly, if you are crossing it also blindly to 110 days, maybe if time is important to you, you are free to cross. But unnecessarily if you are crossing, then also it is not economically advisable, because आप 110 days में complete करते हो तो आपको 67,600 लग रहा है, जो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, इनके आपका डायरेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। ओके, यहाँ पे और एक लाइन है, मिनिमम कंप्लीशन टाइम इज 105 डेज, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि और भी 5 डेज बचा हुआ है एक एक्टिविटी में जिसको आप क्रैश कर सकते हो, जिससे कि प्रोजेक्ट मिनिमम 105 डेज में कंप्लीट हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। So I hope that you understood this problem and this concept. If you have any questions, you can ask me here. Of course, people are not asking here, so I expect that if you have any doubt, you come to the physical classes next week. Again, I'll repeat, room number 211 at 9 a.m. I'll wait for you.
and there are many things to discuss. So what is the date? Date is 19, 20 and 22. Okay? 19, 20 and 22. So these are the 3 dates for the physical doubt clearing classes. तो अगर आपका अभी तक जो भी कुछ doubt है, and thankfully this is the last class of this online mode. I have covered the CPM part, and there's nothing more to discuss. Even if you have any doubt, I'll discuss that. And I'll bring these PPTs also. So if you want to, I can present it there also, and there is Blackboard, etc. So no issue. Do you have anything to ask regarding this all this overall class and anything regarding quiz? Assignment I have given you. Do you have anything to query? Have any query regarding the assignments? Assignment topic is understood. Okay, so you have to do it individually. Although I cannot have 102 topics, so that's why I have given the topics for 10 students. There's nothing like group here. The same topic you have to do, but individually. For example, most of the assignments are like citing some project examples or case studies. And so obviously you will have different case studies and different examples for that purpose, right? So no need to share any kind of material with your group because it's not exactly a group. So you can do individually. And there is a last date for that. I have given the maximum possible date. ठीक है 24th हमको लॉजिकल लगा वैसे बाकी सब्जेक्ट में आपको असाइनमेंट का कुछ लास्ट डेट दिए हैं क्या सब डेट दिए हैं बाकी सब्जेक्ट में ट्वेंटी फर्स्ट ओके ठीक है मेरा ठीक है मेरा रीजनेबल है 24 तक हम दिए ठीक है ना तो आपका एग्जाम 25 से स्टार्ट हो रहा है तो मैक्सिमम टाइम हम दे दिए 24 मिडनाइट तक आप लोग इसको पीडीएफ बना के अपलोड करेंगे you can imagine how I will check all the 102 PDF files and all that. Okay, that is my idea. But you try to give your best because I have to check each and every assignment to score, give you score. And regarding the fees, yes, बोलिए. Assignment में typed copy देनी है ना हमको? मतलब अपना जो content है वो collect करके. Right. देखो assignment हम ये expect, हाँ मैं बता रहा हूँ. असाइनमेंट हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप हाथ से लिख के स्कैन करोगे प्रैक्टिकली नॉट एडवाइस इट्स नॉट पॉसिबल आप टेक्स्ट मटेरियल को पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिएगा ठीक है टेक्स्ट मटेरियल को पीडीएफ कन्वर्ट कीजिएगा और उसको अपलोड कर लीजिएगा ठीक है बट ठीक है ना लेकिन देखो एक चीज हम बता देते हैं जैसे आपको 3-4 केस स्टडीज लिखना है ठीक है उसमें कुछ तो आपका एडिटिंग काम रहना चाहिए ऐसा नहीं कि होल मटेरियल यू विल जस्ट पिक अप फ्रॉम नहीं तो मटेरियल हमारा ही होगा हमारा ही होगा नहीं 100% नहीं होगा सी अगेन बी ऑनेस्ट 100% नहीं होगा दैट टू आई आल्सो नॉट एक्सपेक्ट बट दैट शुड बी सम काइंड ऑफ योर ओन कंट्रीब्यूशन वंस आई विल ओपन दैट पीडीएफ आई विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट ये दैट आई कैन मेक श्योर ठीक है तो आप पूरा का पूरा जैसे कहीं से केस स्टडी एकदम ब्लाइंडली उठा कर चिपका दिए तो पता चल जाएगा so try to give some kind of your input so that it will look like that you have prepared a word file then you have converted that into pdf आपका इंडिविजुअलिटी इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि yes you have prepared it as a word file और उसके ऊपर आपका फर्स्ट पेज में अपना नेम रोल नंबर वगैरह लिख सकते हो टाइटल लिख सकते हो उसके बाद कॉपी पेस्ट तो आप करोगे इसमें हम जानते हैं इसमें कोई मना भी नहीं कर रहे हैं बट दैट शुड बी आल्सो यूजिंग some of your own understanding exactly what is the topic says and
what kind of case studies you justify with that. ऐसा नहीं कि irrelevant case study डाल दिए, है ना? तो that will decide actually, ठीक है? तो it should be exact to the topic. तो उससे पता चल जाएगा कि आप कितना टॉपिक को समझ रहे हो और कैसा कैसा केस स्टडीज दिए हो और उसको कैसे जस्टिफाई किया हो कि these are the case studies which are maybe scope creep or maybe environmental hazards या जो भी केस स्टडीज दिया गया है या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, मेनली यही सब एरियाज मैंने दिया हूँ, so that it will not become more numerical and all that. Now regarding that teacher assessment component of 10 marks, for that I'll advise all of you, the whole class of 102 students. I was thinking that how to judge you in online mode, because there are only 2-3 students who are responding to my general questions like am I audible or is it visible, kind of things. Even some questions in between. So based on that, if I'll make judgments, maybe there are some good students with which I'll do injustice. So it is better, I'll advise all of you to come to the physical class in these 3 days. I'll keep the attendance of all that, and I'll try to have a kind of interaction, and I'll have, and that teacher assessment will mostly, I think, will be based on that, so that you should understand. And that you should way to others who are not present in this online, because very few people are attending these classes nowadays. I don't know what is the reason. There are only 24 students now. Something has shifted in the mindset maybe. So the last these physical classes will be definitely have a effect on the teacher's assessment, no doubt. So anything you want to ask? Sir, excuse me, sir. Yes. Sir, will you provide some tutorial sheet? Okay. Tutorial sheet or question bank. Actually, I have not prepared anything yet because it is suddenly been said. I'll prepare or I'll search if something is available. Okay, it's good that you have reminded me. I'll provide it. Okay, sir. Okay. But see, again, honestly speaking, the question bank or the tube sheet may not be of that much use to you or your exam point of view, I'll tell you. The reason is that the pattern of questions and the thing is that if you completely rely on those question banks, maybe it is not good for you. So it is better to go through the PPTs that I am sharing, right, for all the modules. And you must be knowing that I used to ask the questions based on the modules, right, based on the things I have covered. At the same time, this is a general class and there is another section which is going on for this. So there will be some common question maybe for both the sections. So there may be a little bit deviation in that. Tube sheet concept is good, but maybe if you rely that the questions will come from this tube sheet, then it may be not in your interest. But yes, I will share some question banks or tube sheets in a couple of days, right, in the MS team. I will share, yes. ठीक है, तो और जो भी आपके मन में कंसर्न है, we'll discuss in the physical class. I'll try to my best to help you in this, right? But if I'm not attending the class, then how I can help you? For example, there are few people in this class now. क्या रीजन है आजकल बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं? Can you tell me? Okay. What is the reason? Okay, you will not take any risk. That's good. Okay. So with this, I'll stop here. If you have anything to ask, go ahead. Otherwise, I'll stop here.
So next, I think tomorrow we are having that quiz at 4 p.m. right? And then on Tuesday 9 a.m. we are meeting in the classroom. Okay? Are you all coming to classroom or not? Who said yes? Rohan Sana. Okay. It should not be that only Rohan Sana is in the class that day. बाकी सबको भी आना चाहिए, ठीक है? बाकी सबको भी आना चाहिए. कोई हाथ खड़ा कर रहा है भाई, बोलो क्या है, क्या सम्मान है? महादेवी श्री. हाँ बोलो. यस सर. बोलो. कुछ बोल रहे थे? महादेवी. We are okay with 9 o'clock. ओके ओके. अच्छा हाथ खड़ा किए, मुझे लगा कुछ बोलना है. मतलब क्लास में आना है ना? ठीक है ठीक है. तो ठीक है. तो आपका जो भी डाउट है सब्जेक्ट में, कैसे स्कोर करना है, क्या है, वो सब क्लास में आओगे तो हम कुछ बता पाएंगे. और ये ट्यूट शीट वगैरह से कुछ नहीं होता. ठीक है, मैं कुछ शेयर कर दूंगा. ओके. सर क्विज मार्क्स अपलोड कर दीजिए. क्विज मार्क्स? कौन सा क्विज मार्क्स? सेकंड थर्ड क्विज का मार्क्स अपलोड नहीं हुआ है सर. अपलोड कहाँ करना है? यहाँ पे आप अपना मार्क्स नहीं देख पा रहे हो? नो सर. क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन जो क्विज 2-3 एक साथ हुआ था उसका मार्क्स आपको नहीं पता है? नहीं सर, नहीं दिख रहा. किसी को नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर. तो क्या है ये, कौन बोल रहा है? हर्ष रंजन. यस सर. किसको नहीं दिख रहा है क्विज 2-3 का मार्क्स? वो तो रिटर्न हो गया सर, उसी दिन रिटर्न हुई थी. हाँ, ये कौन बोल रहा है? अपलोड कर दीजिए. देख लो भाई, तुम बाकी लोगों से पूछ लो क्या सिस्टम यूज कर रहे हो. बिजनेस टीम में ढूंढ रहे हो ना? कहाँ ढूंढ रहे हो? ERP में. ठीक है. हाँ, तो जो भी आपका